Beta, in this session we have to study the pronoun. We have to study about the pronoun words. But before that, I would like to confirm. I want to know that how many already have studied, how many already have read about the pronoun before this session, whether in the previous classes or anywhere. Okay, Vedant have read. Yes, Vedant, beta. Yes, sir. Yes. Can you Yes, speak sir. about the pronoun? What is pronouns? What are pronouns word? A pronoun is the name. A pronoun is the name. Yes, yes, Vedant. You need to speak. A pronoun is the name. A pronoun has चलिए कोई बात नहीं. I think you forgot. Anybody else who want to tell about the pronoun? Anandhar? Yes, sir. Beta, do you know about the pronoun? You asked to say something ना? चलिए कोई बात नहीं. तो क्या करना है? Today we are going to study about the pronoun. It's a very important topic for you all. बहुत ही ज्यादा important topic है. इसमें बहुत कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं. और ये हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है. क्लास सेकंड में ही नहीं, इवन इन क्लास थर्ड एंड फोर्थ हर क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो अगर आज आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपके लिए इजी होगा. तो आप सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है प्रोनाउन वर्ड्स क्या होते हैं. So let me open the book first. I will start from your chapter, whatever the story you all have read. We would be starting from there so that we can relate the sentences, relate many sentences what already you have read with the pronoun words, और जिससे आपको आसानी से समझ में भी आए. Now, there are some of the lines what have been taken from the story जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है. Can you read the sentence? Kushi beta, read this couple of line. Kushi, read from here. Beta Kushi, your voice is not coming. Your voice is not coming. Rama Tiwari, read this one. Monty and Daisy and Cuckoo are their three friends. One day, a tortoise comes to meet them. Stop. Monty, Daisy and Cuckoo are three friends. Monty, Daisy and Cuckoo are three friends. Monty, Daisy और कुकू जो हैं वो तीन दोस्त हैं. वो तीनों दोस्त हैं. बेटा आप लोग को समझना है. You do not have to repeat. Everybody have to listen and understand very carefully. जब मैं नाम लेकर के पूछूंगा then you need to respond. ऐसा नहीं है जो मैं बोलूं आप उसी को रिपीट करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. आपको सुनना है फिर समझना है. सुनने से समझ पाएंगे. तो अभी जब मैं पहले जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सभी सुनिए. मोंटी, डेजी एंड कुकू आर थ्री फ्रेंड्स. मोंटी, डेजी एंड कुकू जो हैं वो तीनों दोस्त हैं. वन डे, एक दिन, अ टॉर्टाइज कम्स टू मीट देम. एक टॉर्टाइज है वो आता है टू मीट देम. बेटा यहाँ पे आपको पता है जो टॉर्टाइज आता है किससे मिलने के लिए? किससे मिलने के लिए? नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, किससे मिलने के लिए आता है? वेदांत आप बताइए पहले. माइक ऑन करके. Tortoise comes to meet to whom? Sir, he meet a Monty, Daisy and Cuckoo. Okay. अभी बेटा जो मैंने सेंटेंस लिखा है, आलोक गुप्ता अपना माइक ऑन करिए. मोंटी, डेजी एंड कुकू तीनों दोस्त थे. A tortoise comes to meet them. ये them कौन है? ये जो tortoise है वो किससे मिलने के लिए आता है?
Alok, you are busy with your earphone, I think. There is a noise from your ear, but you are not speaking. बेटा किससे मिलने आता है? एक बार आप कोशिश करो बोलने की, otherwise I would be telling some other's name. Okay, let me take another name. Ananya Singh, now you have to tell. A tortoise comes to meet them. ये them जो है वो किसको रेफर कर रहा है? ये them किसकी बातें कर रहा है? ये जो tortoise करता है वो किससे मिलने के लिए आता है? tortoise डेजी से मिलने आता है। No, डेजी से मिलने आता है तो सब डेजी का नाम लिख देते हैं। them क्यों लिखा गया? उसमें लिखा जाता है tortoise comes to meet, डेजी लिख देते, them क्यों लिखा गया? कोई फायदा था? अनुष्का जायसवाल, आप बताइए। सर वो तीनों से मिलने आता है। तो तीनों का नाम लिखना चाहिए था ना? सर वो तीनों से एक दिन सर tortoise आता है, वो तीनों से कहता है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आप अपनी मर्जी से बोल रही हैं। जितना पूछा जाए उसको केवल ध्यान से दें, अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है, जो टॉर्टाइज कम्स टू मीट देम, उन तीनों से, जो टॉर्टाइज है वो तीनों से मिलने आता है। बिल्कुल सही कहा अनुष्का ने, तीनों से मिलने आता है। लेकिन तीनों कौन कौन? मोंटी, डेजी एंड कुकू, इन तीनों से मिलने आता है। लेकिन इन तीनों का नाम अगर यहाँ पे लिखा जाता तो क्या वो गलत हो जाता? अगर तीनों का नाम लिखा जाता, टॉर्टाइज कम्स टू, ठीक है, यस, अगर तीनों का नाम लिखा जाता तो गलत नहीं होता। लेकिन इन तीनों का नाम लिखेंगे तो बड़ा हो सकता था। लेकिन कई बार बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। कई बार जो किसी का नाम की जगह पे, किसी का नाम लिखने की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज कर लिया जाता है। मेनी टाइम्स ऑन द प्लेस ऑफ अ नेम, many times in the place of the name some other words has been used, some other words are used. जैसे कि यहाँ पे मोंटी, डेजी, कुकू के नाम लिखने के बजाय ये them वर्ड यूज कर लिया गया, तो भी कहीं ना कहीं सही तो है ना? ये उन्हीं मोंटी, डेजी एंड कुकू के लिए ही कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मोंटी, डेजी, कुकू के जगह पे them, ये दूसरा वर्ड यूज किया गया, इसी को प्रोनाउन बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, अगर कभी किसी भी सेंटेंस में अगर किसी का नाम लिखने के बजाय हम कोई दूसरा वर्ड यूज करें और उस वर्ड से ये पता चल जाए किसकी बात हो रही है, किस नाउन की बात हो रही है, ऐसा ना हो कि कुछ भी कोई भी वर्ड यूज कर लें। आपको ऐसा वर्ड यूज करना है जिससे नाउन का पता चले कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वही वर्ड आपका प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, Aman Paswan, should I remove you? There is a lots of noise, even you are not focusing on your study. Aman Gupta and Ronak Singh, दोनों ने वीडियो बंद किया है, इनको बाहर करना पड़ेगा लग रहा है। Yes. जिसके यहाँ से शोर हो रहा हो प्लीज वो अपना माइक बंद करें। अमन गुप्ता ने फिर से वीडियो बंद कर दिया, उनको दिख नहीं रहा है कि वेदर माय वीडियो वुड बी गोइंग ऑन नॉट। कहने का मतलब ये है, when in the place of a noun, नाउन को, अच्छा नाउन क्या होता है पता है आप सभी को? ध्यान है कि नहीं? यस सर। नाउन क्या होता है? यस सर। ठीक है, अभी शांत होइए। संज्ञा। सभी लोग शांत होइए। आप जिसका नाम मैं लूंगा सिर्फ उसको बोलना है। कंचन अपना माइक ऑन करिए, कंचन अपना माइक ऑन करिए और आप बताइए बेटा नाउन क्या होता है, जानती है कि नहीं? सर जानते हैं। क्या है नाउन? व्हाट आर नाउन्स? नहीं, संज्ञा नहीं, नाउन का मतलब हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, लेकिन संज्ञा क्या होता है? नाउन वर्ड्स क्या होते हैं? संज्ञा शब्द क्या होते हैं बताइए? नाउन इज द नेम ऑफ। सभी लोग माइक बंद करें, जिससे पूछा जाए सिर्फ उसे से पूछना है। वेदांत आप अपना माइक बंद करिए।
animals or things. अंशु पासवान आप बताइए, माइक ऑन करिए तुरंत। अंशु, अंशु को भी नहीं। अमन पासवान, नाउन क्या होता है? चलिए शुभांगी त्रिपाठी आप बताइए। शुभांगी त्रिपाठी। Yes, sir. Plate and things. स्वाति सिंह, माइक ऑन करके बताइए। Sir, bird. हाँ बेटा स्वाति, फिर से बोलिए। Sir, bird. अनुष्का जायसवाल आप बताइए, नाउन क्या होता है? व्हाट आर नाउन्स? The noun is a word that you think, place, person, etc. चलो ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताता हूं। अगर कभी भी कोई पूछे व्हाट आर नाउन वर्ड्स, व्हाट इज नाउन वर्ड्स क्या है? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। कोई भी नाम, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी सामान का हो, चाहे किसी शहर का हो, चाहे किसी जगह का हो, चाहे जिसका नाम, नाम जो है वही नाउन है। नाउन को जो सिनोनिम होता है एक तरीके से कह सकते हैं नाम होता है। नाम तो जानते हैं ना, नाम क्या होता है? Yes, sir. ये क्या है? मेरे हाथ में क्या है ये? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग? Sir, mouse. Sir, mouse. आपका नेम है? Sir, mouse. व्हाट इज Sir, दिस? mouse. व्हाट इज दिस? Sir, mouse. Sir, mouse. Sir, phone. इसका Sir, phone. Sir, phone. एक बार जैसे पूछे तुरंत बताइए, बार बार किसी बाद में मत बोला करिए। ऐसा ना हो किसी और का नाम सुन करके। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। किसी भी चीज का नाम, मेरा नाम, आपका नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी के गांव का नाम, सभी नाउन है। और जब नाम की जगह पे जो वर्ड्स यूज किए जाएं, जैसे कि यहाँ पे मोंटी, डेजी एंड कुकू, ये तो नाम ही है ना। तो जब नाम है तो इन नाम की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया गया? मोंटी, डेजी, कुकू। इन तीनों के नाम की जगह पे ये वर्ड यूज किया गया, देम। तो जो देम वर्ड है ये प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई पूछे प्रोनाउन क्या है, इफ एनीबडी आस्क व्हाट आर प्रोनाउन वर्ड्स, तो आप क्या कहेंगे? यू विल टेल इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। आप ऐसा कह सकते, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन शब्द की जगह पे यूज किया जाता है। यानी नाउन की जगह पे जो भी वर्ड यूज किया जाए, नाउन की जगह पे जो भी शब्द यूज किए जाए वो प्रोनाउन कहलाता है। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now I'm going to read some of the sentence. You all have to identify that ki which one is the pronoun word. Yes, sir. I have written a sentence. You all need to. ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत सब लोग बोलने लगो। I will take the name. हर्षित कुमार, जरा पहले आप सेंटेंस पढ़िए। हर्षित कुमार। Sir, Ram is a boy. He is reading in Sun Valley School. Good. Ram is a boy.
ही इज रीडिंग इन सन वैली स्कूल। अब इसमें से बहुत सारे वर्ड हैं। अब वर्ड क्या होता है ये तो आपको पता ही है। अब मैं जिससे पूछूंगा उसी को बताना है। हाउ मेनी वर्ड इन दिस कंप्लीट सेंटेंस, यहां से लेके राम से लेके स्कूल तक कितने सारे वर्ड हैं। किसको किसको आता है वो हैंड रेज करे। आई विल टेक द नेम, जिसका नाम मैं लूंगा उसको बताना है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दीज कपल ऑफ सेंटेंसेस। केवल हर्षित को आता है, वेदांत को आता है, अनन्या को आता है, बाकी किसी को नहीं आता। कितने वर्ड्स हैं खुशी बताइए फिर, कितने वर्ड्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। बेटा आवाज नहीं आ रही खुशी आपके यहाँ से। 11। 11। खुशी इज टेलिंग 11। लेट मी काउंट। सभी काउंट करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 1 2 3 4। ये 4 वर्ड्स का एक सेंटेंस है। यहाँ फुल स्टॉप लग गया ना, तो यानी यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। सेंटेंस वही होगा। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का समूह है जिसका कंप्लीट सेंस निकले, जिसका कोई मतलब निकले, मीनिंग निकले, अर्थ निकले। तो राम इज ए बॉय एक पूरा अर्थ निकल रहा है कि राम एक लड़का है। तो ये यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया। 4 वर्ड्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7। He is reading in Sun Valley School. वह सन वैली स्कूल में पढ़ता है। He is studying in Sun Valley School. तो दैट मीन्स कि 7 वर्ड्स आर देयर। इसका भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो दैट मीन्स कि ये दूसरा सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस है। ये दोनों सेंटेंस मिला करके कितने वर्ड्स हैं इसमें? 7, इसमें 4 हैं। 7 + 4 = 11। दैट मीन्स कि खुशी इज करेक्ट। नाउ you all have to identify that कि which one is the pronoun। क्या पहले सेंटेंस में कोई pronoun है? राम से लेके बॉय तक, राम से बॉय से लेके बॉय तक, राम इज आ बॉय। इन चारों में से कौन सा वर्ड pronoun है ये बताना है। यस सर। सर नहीं वैसे नहीं बताना है। until I take your name you should not have to speak. It is not the proper way. खुशी you have to remember this one. अनंतधर, राम इज अ बॉय में कौन सा वर्ड pronoun वर्ड है? क्या कोई pronoun वर्ड है? अगर है तो सर राम। राम क्या है? राम क्या है? नाउन है, pronoun है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? सर ना बेटा जब मैं नाम लूंगा तभी बताना है। ये गलत बात है और शायद आप गलत बता रहे हैं। मैं सही नहीं बोलूंगा इसको अभी। ठीक है, आप ही बताइए। अमन पासवान माइक ऑन करिए। राम इज ए बॉय, इसमें प्रोनाउन वर्ड कौन सा है? अमन पासवान गेम खेल रहे हैं या एक्टिव नहीं है जूम पे? अंशु पासवान, अंशु पासवान आप पहचान पा रही हैं? नो सर। आपको नहीं पता इसमें से? अच्छा इसमें से नाउन या प्रोनाउन कौन सा है? अच्छा नाउन ही बता दीजिएगा, प्रोनाउन नहीं बता पा रहे। क्या नाउन है इसमें? सर राम। Which one is the noun word in this sentence? चलिए ठीक है, माइक बंद करिए, आपका प्रॉपर नहीं आवाज आ रही है। रौनक सिंह आप अपना माइक ऑन करिए। आप बताइए बेटा, राम इज ए बॉय में प्रोनाउन वर्ड। अच्छा ये बताइए, राम इज ए बॉय में, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, सभी ध्यान से सुने। राम इज ए बॉय में कितने लोग ये कहते हैं कि प्रोनाउन वर्ड है? कौन बता सकता है कि राम इज ए बॉय में प्रोनाउन वर्ड है? वो मुझे बता सकते हैं। राम इज ए बॉय में प्रोनाउन वर्ड कौन कौन बता सकता है? शो मी योर हैंड। देखता हूं कितने लोग बता सकते हैं। राम इज ए बॉय में कौन सा वर्ड? राम है या बॉय है या इज है या ए है? कौन सा प्रोनाउन है? अच्छा आनंदधर, अनुष्का जायसवाल, शुभांगी, ये लोग का कहना है कि प्रोनाउन वर्ड है। अभी पूछेंगे कौन सा। और कौन कह रहा है? हर्षित कुमार भी कह रहे हैं प्रोनाउन है। ठीक है, आपको पता है ना। अनन्या सिंह, खुशी भी कह रही हैं प्रोनाउन वर्ड। अभी ध्यान से सुनिए, जो नाउन के नाम की जगह पे यूज किया जाए।
नाम की जगह पे अगर यूज किया जाए, या तो नाम यूज करो या तो नाम की जगह पे वो दूसरा शब्द यूज करो, सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए। नाम की जगह पे आपका प्रोनाउन अगर है तो उसकी जगह पे नाम को सेट करके देखो, जिसको आप सोच रहे हैं कि ये प्रोनाउन है। मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे हैं बॉय आपका प्रोनाउन है, तो बॉय की जगह अगर राम लिख दे तो राम इज ए राम, क्या ये सही होगा? अगर सही नहीं लग रहा है तो ये गलत है। बॉय आपको प्रोनाउन तब नहीं हुआ। आपको प्रोनाउन की जगह पे आपको नाउन वर्ड रखना पड़ेगा। तो अगर नाउन आप रखते हैं और फिर भी उस सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता है, तभी ये प्रोनाउन वर्ड माना जाएगा, नहीं तो प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग कितने लोग कह रहे हैं इसमें प्रोनाउन वर्ड है? हैंड रेज करें। अनन्या सिंह बताइए, विच वन इज द प्रोनाउन वर्ड? इज। अच्छा, और कौन कह रहा है? और कौन कह रहा है? अनंतधर। चलिए, एक ने बोला राम, इज के जगह पे मैं राम फिर लिख दे रहा हूं। इज किसके, इज कौन से नाम की जगह पे यूज किया गया है? अगर अनन्या सिंह ने बताया था इज आपका प्रोनाउन है, तो कौन से नाउन की जगह पे यूज किया गया है? क्यों अनन्या? राम के नाम पे जरा राम ही लिख दे रहा हूं, राम राम आप बॉय। ये कौन सा सेंटेंस हुआ है? तो रॉन्ग हो गया। चलो, अब एक बच्चे ने बोला आ है, राम एज लिख दे रहा हूं। अब ए जो है कौन से नाउन की जगह पे यूज किया गया है? बॉय आपका किसका नाम है? बॉय आपका, चलो ठीक है, राम इज बॉय। ए की जगह पे मैंने बॉय लिख दिया, ए की जगह मैंने बॉय लिख दिया, और बॉय लास्ट में लिखा ही है इसलिए मैंने फिर से बॉय लिख दिया। राम इज बॉय, बॉय होगा? सत्य ये है कि इसमें प्रोनाउन वर्ड है ही नहीं। इसमें प्रोनाउन वर्ड है ही नहीं। समझ में आया? राम आपका नाम है, लड़का भी एक तरीके का नाम है, ठीक है। और इज जो है वो एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब होता है। आप लोग बड़े होंगे तब सीखेंगे। अभी इसको डिलीट करते हैं। अब इस दोनों सेंटेंस को पढ़िए। राम इज अ बॉय, ही इज रीडिंग इन सन वैली स्कूल। अब इसमें से किसी को बताना नहीं है कि इसमें से कितने लोग ये कह रहे हैं कि इसमें प्रोनाउन वर्ड है। इसमें प्रोनाउन वर्ड है, कितने लोग कह रहे हैं कि इज देयर एनी प्रोनाउन वर्ड? इन दोनों सेंटेंस में से किसी में भी प्रोनाउन वर्ड है तो वो अपना हैंड रेज करें प्रॉपर कैमरा के सामने, तभी तभी मैं नाम लूंगा। अनुष्का जायसवाल कह रही हैं कि प्रोनाउन वर्ड है, ये पहचानती हैं इसका मतलब। और कौन पहचानता है? हर्षित भी कह रहे हैं, खुशी भी कह रहे हैं, आनंदधर भी कह रहे हैं, अनन्या सिंह कंफ्यूज हैं, कभी हाथ खोल रही है कभी बंद कर रही हैं, रौनक सिंह भी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, पता करते हैं। वेदांत भी कह रहे हैं, आलोक, कंचन, सब ओके। आलोक गुप्ता, आप ही बताइए, माइक ऑन करिए। Which one is the pronoun word? सर ही। चलिए, आलोक कह रहे हैं ही है। इसके अलावा अनन्या सिंह आप बताइए। हिम कहाँ पे लिखा है? Where is him? हिम कहाँ पे लिखा है? कुछ भी बोल देती हो आप। ये जो देखिए, अनन्या सिंह कह रहे हैं इन और इज। ठीक है, सभी लोग शांत होइए। बेटा जो भी सोच रहे हैं, अनन्या सिंह कह रहे हैं इन, तो राम इज ए बॉय, ही इज रीडिंग। इनके जगह अगर राम करेंगे, ही इज रीडिंग राम सन वैली स्कूल, गलत। ही इज रीडिंग राम सन वैली स्कूल, सही है ये? गलत है? जो भी प्रोनाउन वर्ड कह रही हो उसकी जगह पे नाउन वर्ड रख करके आप स्वयं सोच लो कि क्या सही हो रहा है, क्या मतलब तो नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, अंशु पासवान आप बताइए। आलोक तुरंत अपना माइक बंद करिए, आपसे क्वेश्चन हो गया अगर। अंशु पासवान आप बताइए। कंचन बेटा आप बताइए। सर ही।
ही, कंचन कह रही हैं ही। हर्षित कुमार आप बताइए। सर ही। वेदांत, अनुष्का जायसवाल, शुभांगी त्रिपाठी, सही सभी लोग ही बोल रहे हैं। यस, ही इज द करेक्ट आंसर, ही इज द करेक्ट आंसर, ही इज द करेक्ट वन। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ही इज रीडिंग इन सन वैली स्कूल, वह सन वैली स्कूल में पढ़ता है। तो ही के जगह पे वह यूज किया गया ना, तो वह की जगह अगर राम लिख दें, राम इज रीडिंग इन सन वैली स्कूल, तो राम सन वैली स्कूल में पढ़ता है। ये राम के लिए है तो ये ही यूज किया गया है। ही की जगह पे अगर राम यूज करते तो मतलब तो एक ही निकलता। आपकी बात गलत तो नहीं होती, बदल तो नहीं जाती ना। तो दैट मीन्स ये ये आपका ही वर्ड ही आपका प्रोनाउन है। चलिए ठीक है, बहुत हुआ। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब प्रोनाउन में भी बेटा दो तरह के प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन में भी दो तरह के प्रोनाउन होते हैं। होता क्या है, आप सभी को शुरू में पढ़ाया गया होगा, नेमिंग पार्ट एंड टेलिंग पार्ट। देयर इज ए सेंटेंस, सेंटेंस दो भागों में बटा होता है। एक पार्ट होता है नेमिंग पार्ट, दूसरा पार्ट होता है टेलिंग पार्ट। नेमिंग पार्ट और टेलिंग पार्ट के बारे में कितने लोग कंफर्म है, कितने लोग को पता है नेमिंग पार्ट एंड टेलिंग पार्ट? शो मी योर हैंड। नेमिंग पार्ट और टेलिंग पार्ट्स कितने लोग को पता है? कोई भी नहीं बता पा रहे हैं मुझे वो चैप्टर। अच्छा, हर्षित ने हैंड रेज किया है, आनंदधर ने हैंड रेज किया है। बेटा नेमिंग पार्ट और टेलिंग पार्ट किसी को नहीं पता है? वेदांत आपको भी नहीं पता है? माइक ऑन करके बताइए। नेमिंग आपको नहीं पता? बेटा what you all need to do, you everybody are having the book or not? बुक्स सभी के पास है या नहीं? सर है, सर है, करना क्या है, अगर मैं बता दूंगा तो आप कथा की तरह वो भूल जाओगे। आपको नेमिंग पार्ट और टेलिंग पार्ट आपको पहले पढ़ाते हैं, पहले बताते हैं। आप चैप्टर नंबर 1 पहले खोलिए, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 सभी लोग ओपन करिए अपने बुक में, बुक ए। ओपन द पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 ओपन है? यस सर। यहाँ पे एक राइटिंग जंक्शन है। राइटिंग जंक्शन में बताया गया है नेमिंग पार्ट और टेलिंग पार्ट क्या होता है। एक सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज हैविंग द कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा एक अर्थ निकलता है। और एक सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक आपका टेलिंग पार्ट होता है, एक आपका नेमिंग पार्ट होता है, दूसरा आपका टेलिंग पार्ट होता है। आपको पेज नंबर 23 में कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब नेमिंग पार्ट क्या होता है, सबसे ऊपर लिखा है देखिए, दैट नेमिंग पार्ट टेल अस हु आर, a naming part tells us who or what the sentence is about। जो नेमिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, जो सेंटेंस है वो किसके बारे में, वो किसके बारे में, what the sentence is about, जो सेंटेंस है वो किसके बारे में कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एमिली इज एन एलिफेंट, तो एमिली इज अ नेमिंग पार्ट। ये एमिली इज एन एलिफेंट में क्या है, ये बताया जा रहा है किसके बारे में ये सेंटेंस कहा जा रहा है। तो एमिली आपका, ये एमिली के बारे में कहा जा रहा है, तो एमिली आपका नेमिंग पार्ट हो गया। बाकी जो बचा वो क्या हुआ, टेलिंग पार्ट। अभी जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखा था, अभी what the example I was written here, let me write once again।
लेट्स से अभी जो ये सेंटेंस लिखा गया, राम इज ए बॉय, ही इज रीडिंग इन सन वैली स्कूल, ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? पहली बात, यहाँ पे दो सेंटेंस है। राम के बारे में बात हो रहा है ना। अब इसमें आपका नेमिंग पार्ट तब क्या हुआ? नेमिंग पार्ट क्या हुआ? राम आपका नेमिंग पार्ट है। राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय से क्या हुआ? किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है, तो राम आपका नेमिंग पार्ट है। बाकी इज अ बॉय आपका क्या है? टेलिंग पार्ट है। समझ में आया? आप अपनी बुक में ही देखिए। The telling part tell us different thing about the naming part। जो नेमिंग पार्ट के बारे में जो अदर चीजें हैं, राम के बारे में ये बता रहा है, इज अ बॉय, एक लड़का है। किसके बारे में बता रहा है? नेमिंग पार्ट के बारे में बता रहा है। तो सब मिला के नेमिंग पार्ट के बाद जो कुछ भी बचे दैट इज द टेलिंग पार्ट। समझ में आया? अब आपको ध्यान देना है बेटा, आपका लास्ट 1 मिनट बचा है, तो अब आप लोग को ध्यान देना है। आपका जो नेमिंग पार्ट और टेलिंग पार्ट होता है, प्रोनाउन, जो प्रोनाउन होता है अगर नेमिंग पार्ट की जगह पे आता है तो ही यूज किया जाता है। अगर टेलिंग पार्ट की जगह पे यूज होता है तो वहां पे ही नहीं कुछ और यूज किया जाता। आपको प्रोनाउन सिखाने में मुझे एक दिन और समय चाहिए होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रोनाउन बहुत अच्छे से और भी समझा दूंगा। ओके? हो सकता है मैं आपको रिकॉर्डिंग बना के, एक रिकॉर्डिंग बना के वीडियो भेजूंगा। कल परसों छुट्टी रहेगी तो मैं एक रिकॉर्डिंग बना के भेजूंगा। यू ऑल नीड टू वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो। ओके? टुमारो इज संडे, so I will having the time, so I will prepare a video, recorded video. You all need to watch to understand about the pronoun words, even in the singular form and in the plural form.